Hello dear students, I am Chandni Zardosh, Assistant Professor at Civil Engineering Department of Mahatma Gandhi Institute located at Navsari. In this video, I am going to cover the topic of building construction, that is Module 3 of subject Basics of Civil Engineering. The topics that will be covered under this video series will be types of buildings, components of buildings and its function, types of loads acting on the building, types of brick bonds, typical building layout, symbols used in electrical layout, symbols used for water supply, plumbing and sanitation. This syllabus is covered as per GTU. The syllabus will be covered in the parts of video. This is the first part of video in which the contents that we will cover today are buildings, its classification based on occupancy and based on structure. So let's start with our first topic, buildings. बिल्डिंग होती क्या है? बचपन से सुनते आए हैं हम लोग बिल्डिंग वर्ड. तो what it is actually? Building a usually roofed and a wall structure built for permanent use. जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी वॉल्स होती है और रूफ होते हैं जो परमानेंट यूज़ के लिए हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग. उसका क्या काम क्या है? A building aims to give shelter along with security. Other purposes such as building serve several needs of society, primarily as shelter from weather, security, living spaces, privacy, to store belongings, supplied electricity, and to comfortably live and work. बिल्डिंग का पर्पस क्या होता है? हमें शेल्टर प्रोवाइड करना. किससे? वेदर से. जब बारिश हो तो हम बिल्डिंग के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं. जैसे फिर विंटर्स में इतनी सर्दी होती है तो हम कहाँ पे आ जाते हैं? अपनी कोई भी एक ऐसे बिल्डिंग में. सो इट एम्स टू गिव शेल्टर. अदर पर्पसेस क्या है? रहने के लिए, काम करने के लिए. प्रिवेसी टू स्टोर बिलोंगिंग्स. प्रिवेसी भी एंड टू स्टोर बिलोंगिंग्स, जो अपनी चीज़ें रखने के लिए. जो भी हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जिसकी वॉल्स और रूफ होती है वो होती है बिल्डिंग. इसकी डेफिनेशन दी गई है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में. नेशनल बिल्डिंग कोड मतलब NBC वो बिल्डिंग को डिफाइन करता है एज एनी स्ट्रक्चर फॉर व्हाटसोएवर पर्पस and of whatsoever material constructed and every part thereof whether used as human habitation or not, and includes foundation, plinth, walls, floor, roof, chimney, plumbing and building services, fixed platform, veranda, balcony, cornice or projection, part of a building or anything affixed there to, or any wall enclosing or intended to enclose any land or space and design an outdoor display structure. So as per NBC, building means जो हम लैंड को कवर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी लैंड को कवर करने के लिए. कवर कैसे करेंगे? यूजिंग वॉल्स एंड रूफ. इट इज कॉल्ड बिल्डिंग. नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग. कितनी टाइप्स की बिल्डिंग होती है? तो हम मेजरली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बिल्डिंग्स को, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी मीन्स हम किस पर्पस के लिए बिल्डिंग को यूज़ करते हैं, कौन से काम के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई है, उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी. वेयरएज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर यूजिंग विच द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड. कौन सी टेक्निक से हम बिल्डिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. Let's start with classification based on occupancy. In that, first one is residential building. As the name itself says, जहाँ पर हम रहते हैं, the building that is used for residential purpose, it is known as residential building. It is further categorized into 4 parts, A1, A2, A3 and A4. उसमें A1 क्या है? Lodging और rooming houses. A2, 1 or 2 private dwellings. A3, dormitories. A4, अपार्टमेंट हाउसेस. डॉर्मिटरीज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं.
जैसे कि कोई धर्मशाला ले लो, वहाँ पे एक रूम में 10-12 लोगों के रहने की जगह होती है, दैट इज कॉल्ड डॉर्मिटरीज. Second classification is educational building. The building that is used for education purpose. जहाँ पे पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं educational building. उसकी further two categories है, B1 and B2. The, the schools up to senior secondary level, and B2 is all other training institutions. इसमें कौन सी बिल्डिंग्स इंक्लूड होती है? स्कूल्स, कॉलेजेस, प्ले ग्रुप्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक ITIs जो होती है, फिर कोचिंग क्लासेस होती हैं, वो सब एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आती है. द थर्ड कैटेगरी इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स. इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट, C1, C2 एंड C3. उसमें C1 क्या होता है? हॉस्पिटल एंड सैनिटेरिया. हॉस्पिटल और उसके साथ जो बिल्डिंग्स, उसकी सपोर्ट के लिए जो बिल्डिंग्स बनते हैं वो द सपोर्टिंग बिल्डिंग्स टू द हॉस्पिटल. C2 कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस, ओल्ड एज होम्स जैसे कि. C3 पीनल इंस्टीट्यूशंस, जेल, प्रिजन्स एंड रिफॉर्मेटरीज. वो सब क्या किस में आते हैं? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. जो बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज के लिए बनाई जाती है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. उसमें फर्दर कैटेगरीज है G1, G2, G3. G1 में कौन सी आती है? लो हजार्डियस बिल्डिंग्स. उसमें कौन सी? वर्कशॉप, सिरामिक फैक्ट्रीज. वेरएज G2 में कौन सी आती है? मॉडरेट हजार्ड इंडस्ट्रीज लाइक कोल्ड स्टोरेज, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. एक बार जो चीज़ें बनाई जाती है उसको हम डिलीवर करने से पहले स्टोर करते हैं. वी स्टोर दोज मटीरियल्स दैट आर being produced at any industry. Such structures are known as G2 industrial buildings. G3 में कौन से आते हैं? High hazard products, explosive factories, fireworks, manufacture, oil installations, etc. जिसमें fireworks बनते हैं या तो high hazards के जो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है वो होती है G3 type of industrial buildings. Another category is business buildings. उसमें कौन सी टाइप्स आती है? E1, E2, E3, E4 एंड E5. ये कौन से बिल्डिंग्स है? जो बिल्डिंग्स हम ऑफिसेज, बैंक्स एंड पुलिस स्टेशन के लिए यूज़ करते हैं. E2 में कौन सी आती है? लेबोरेटरीज, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, लाइब्रेरी एंड टेस्ट हाउसेज. E3 में कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस, जो हम सर्विसेज के लिए छोटी सी शॉप्स होती है या तो फिर बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कंपनीज की, वो आती है बिजनेस बिल्डिंग्स में. E4 टेलीफोन एक्सचेंजेस, E5 टीवी स्टेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस. वो सब बिल्डिंग्स किस में आती है? बिजनेस बिल्डिंग्स में. मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स. मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स इंक्लूड्स शॉप्स, स्टोर्स, मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स. F1 टाइप, F2 टाइप एंड F3 टाइप. ये 3 कैटेगरीज है फर्दर. F1 टाइप में 500 स्क्वायर मीटर से एरिया कम हो तो F1, 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया हो तो F2. एंड F3 में कौन सी? अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स. जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं वो कई बार हमने देखा है अंडरग्राउंड भी होते हैं, तो ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में. नाउ स्टोरेज बिल्डिंग्स. स्टोरेज बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग होती है? दिस बिल्डिंग्स आर जनरली यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड शेल्टरिंग ऑफ गुड्स और वेल्स. जो एक बार पूरी प्रोडक्ट बन जाती है उसके बाद जिसका स्टोरेज होता है, दोज आर स्टोरेज बिल्डिंग्स. या तो फिर किसी शॉप में मटेरियल्स लाने के पहले शॉप वाला जहाँ पे स्टोर करता है, बड़ा सा स्टोरेज गोडाउन रहता है, वो होती है स्टोरेज बिल्डिंग लाइक वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गैरेजेस, टेबल्स, transit trades, etc. Another type is hazardous building. These buildings include any building which is for storage, handling, manufacturing highly combustible materials. जिसमें highly combustible materials बनते हैं जो easily fire पकड़ लेते हैं, उसे बोलते हैं highly combustible materials. वो होती है hazardous buildings. वो इस कैटेगरी में आती है. इसका एग्जाम्पल देख ले. highly toxic, corrosive alkalis, acids or other chemicals, liquids, creating fumes and material producing explosive mixtures of dust which can be converted into fine particles producing rapid ignition. जो तुरंत आग पकड़ ले, वैसी बिल्डिंग्स, वैसे मटेरियल्स जिस बिल्डिंग्स में बनते हैं उसे बोलते हैं हजार्डियस बिल्डिंग्स. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कौन से टाइप्स के होते हैं? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर.
उसमें हम देखते हैं पहला लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय इट? इट इज अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ स्लैब्स, बीम्स एंड लोड बेरिंग वॉल्स. ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्लैब्स होते हैं, बीम होते हैं और लोड बेरिंग वॉल्स. उसमें क्या होता है, हम जो फ्लोर पे खड़े रहते हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो हमारा वेट होता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो जो फ्लोर का वेट है वो स्लैब्स को जाता है, स्लैब से जाता है बीम्स पर और बीम से जाता है वॉल्स पर. जो वॉल्स होती है वो लोड बेयर करती है, बीम से लेके वॉल्स पे जाता है, फिर वॉल्स फर्दर फाउंडेशंस को देती है और फाउंडेशन आसपास की सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो load from the slab, roof or trusses and the floors are transmitted through walls to the subsoil below the ground through their foundations. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, और उसके लिए हमें लार्जर फाउंडेशन एरिया चाहिए बिकॉज ज़्यादा ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है. एज द लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिक is much less than that of RCC. ब्रिक्स की लोड बेरिंग कैपेसिटी RCC के मुकाबले काफ़ी कम होती है. Therefore, brick foundation needs larger foundation area with respect to RCC frame structure because load bearing capacity of brick is much less than that of RCC. Most of the residential buildings are small in size and are up to 3 story and are constructed as load bearing structure. जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है वो 3 फ्लोर्स तक होती है, तो हम ऐसे बिल्डिंग्स को लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से बना सकते हैं. Such types of structure are most suited where hard strata of soil is available at shallow depth. ऐसे स्ट्रक्चर हम कहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ में, थोड़ी सी एक्सकेवेशन के बाद हमें हार्ड बेरिंग स्ट्रेटा मिल जाता है. The advantages of load bearing structure are: it has thick brick wall. Thicker walls give more weather resistant and also noise protection. जो walls होती है वो thick होती है क्योंकि लोड वही बेयर करती है. उससे क्या होता है, जितनी thick wall रहेगी उतना हमें weather resistance मिलेगा. बाहर का weather अंदर के बिल्डिंग के अंदर के weather को इतना इफेक्ट नहीं करेगा. एंड ऑल्सो नॉइस प्रोटेक्शन. बाहर की आवाज़ बिल्डिंग के अंदर काफ़ी कम आएगी या तो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि थिक ब्रिक वॉल्स होती है. सेकेंड थिंग इज इट इज़ गुड एंड चीप फॉर लेस देन 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन बिकॉज ब्रिक्स आर चीप. अभी ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो ब्रिक से बनता है. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स, सो इट इज़ चीपर फॉर 2 फ्लोर. अगर हम 2 फ्लोर्स तक बनाते तो हमें ये चीप पड़ता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है. Alright, now let's see the disadvantages of load bearing structure. It loses carpet area due to more thickness of wall. जितनी थिकनेस ज़्यादा रहेगी उतना कारपेट एरिया, मतलब जो यूजेबल एरिया होता है फ्लोर में, वो हमें कम मिलेगा. लेबर वर्क इज इंक्रीज एंड मटीरियल लाइक ब्रिक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन क्वान्टिटी. काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स चाहिए हमें और वो ब्रिक्स को कैरी करने के लिए उतने ही लेबर्स चाहिए. When the wall collapses in any situation, then the whole structure will collapse. अगर एक दीवार टूट जाती है तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा क्योंकि वो जो दीवार होती है, वो जो वॉल होती है, वही लोड बेयर कर रही होती है. राइट. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इज बैड एट earthquake resistant as shock waves produce irregular tension and compression in columns. Tension is bad greatly by steel and RCC which is absent in load bearing structures. जब earthquake आता है, when it is earthquake, तो क्या होता है, जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है वो टेंशन और कंप्रेशन देती है. टेंशन तो स्टील बेयर कर लेता है और आरसीसी कंप्रेशन बेयर कर लेती है. बट इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इट इज मिसिंग क्योंकि जो वॉल्स बनती है वो भी ब्रिक से ही बनती है. सो जो टेंशन एंड कंप्रेशन की वेव्स है वो ये स्ट्रक्चर नहीं बेयर कर पाता. देयरफॉर द स्ट्रक्चर फेल्स इन केसेस ऑफ earthquake. Another type of building is that is constructed using frame structure. It is a structure comprising of slab resting on beams and beams are supported by a network of columns. ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्लैब होते हैं, बीम्स होते हैं और नेटवर्क ऑफ कॉलम्स, जिसमें जो फ्लोर का लोड होता है वो जाता है स्लैब्स पे,
स्लैब से जाता है बीम्स पे, इधर हम फिगर में देख सकते हैं। और बीम्स किसको ट्रांसफर करता है? कॉलम्स को। उसे बोलता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ कंक्रीट, स्टील और ऑफ वुड। ये तीन मटेरियल यूज करके बना सकते हैं। वेरएज हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में देखें, उसमें क्या था, वो वॉल्स बेयर करती थी लोड, और इसमें कॉलम्स है। सो हाउ डज फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क्स? इसमें क्या होता है, लोड्स फ्रॉम द स्लैब आर ट्रांसफर्ड टू द बीम्स एंड बीम्स रेस्ट ओवर कॉलम्स एंड द होल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर्ड टू द सबसॉइल बिलो द ग्राउंड थ्रू द कॉलम्स एंड देयर फुटिंग्स। इसमें क्या होता है, जो फ्लोर का लोड होता है वो किस पे जाता है, पहले स्लैब्स पे, स्लैब से जाता है बीम्स पे, और बीम से फिर जाता है कॉलम से। कॉलम क्या करता है, वही लोड फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है और फाउंडेशन से आसपास की सॉइल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हियर वॉल्स जस्ट एक्ट लाइक पार्टीशन एंड नन ऑफ देम बेयर्स लोड। इसमें जो वॉल्स बनी होती है वो सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज होती है, रूम को सेपरेट करने के लिए बनाई जाती है, उन पे कोई लोड लगता नहीं है। RCC is the most suitable material to withstand external loads like compressive, tensile, torsion and shear along with moment. So all frame structure are constructed with RCC. Mostly ये जो frame structure बनते हैं वो RCC reinforced cement concrete, जिसमें concrete बनता है sand, cement और aggregate से, और reinforcement किया जाता है steel यूज करके। ओके, that is RCC। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स, वो मोस्टली आरसीसी से बनाया जाता है। आरसीसी का एडवांटेज ये रहता है कि ये कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल, टॉर्शन और शेयर, अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगते हैं बिल्डिंग पे, ये सारे लोड्स ले लेता है। दैट इज कॉल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर। जनरली ऑल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और हाई राइज बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड एज फ्रेम स्ट्रक्चर्स। The advantages of frame structure are, those are flexible and have good results in earthquake. Earthquake में ये structures काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये टेंशन और कंप्रेशन बेयर कर लेता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू थिनर वॉल्स, वॉल्स जो होती है वो सिर्फ सेपरेशन के लिए होती है, तो हम थिन भी बना सकते हैं या तो फिर और कोई मटेरियल भी यूज करते हैं लाइक शीट्स। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, can add more floors, carpet area is almost same, ये स्ट्रक्चर काफ़ी जल्दी बन जाता है। We can also add more floors, ज़्यादा फ्लोर्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में भी काम लगता है। कारपेट एरिया इज ऑलमोस्ट सेम। डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर आर, इसके डिसएडवांटेजेस, अब जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो मटेरियल के पर्टिकुलर डिसएडवांटेजेस है। एंड अदर थिंग इज, इन फ्रेम स्ट्रक्चर span lengths are usually restricted to 40 feet when normal reinforced concrete. Otherwise, spans greater than that can cause lateral deflections. ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जो स्पान होते हैं, जो स्लैब होता है, वो मैक्सिमम 40 फीट की लेंथ का रख सकते हैं। उससे ज़्यादा रहेगा तो लेटरल डिफ्लेक्शन आएगा, वो स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। So we cannot construct spans greater than 40 feet if we use this type of construction method. The third type is composite structure. The structure constructed with combination of both load bearing as well as frame structure, it is called composite structure. ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फ्रेम स्ट्रक्चर भी होता है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता था, कॉलम्स, और लोड बेयरिंग में लोड बेयरिंग वॉल्स, वो वॉल्स और कॉलम्स दोनों से बनता है। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, external walls are treated as load bearing walls and all the intermediate supports are in the form of RCC columns. इसमें क्या होता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें जो बाहर की वॉल्स होती है, द एक्सटर्नल वॉल्स, दोज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लोड बेयरिंग वॉल्स, वो लोड बेयर करती हैं, और जो मिडल वाली वॉल्स होती है वो सिर्फ पार्टीशन वाली होती है, पार्टीशन वॉल्स होती हैं। उसके बदले वहाँ पे क्या फिट किया जाता है, कॉलम्स, नेटवर्क ऑफ कॉलम्स बिठाए जाते हैं। ओके, जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो बीच में है कॉलम्स
और आसपास की बाहर वाली जो वॉल्स है वो लोड बेयरिंग वॉल्स है। In composite structure, the load of slab is transmitted to the subsoil below the ground by load-bearing walls and columns through foundation. इसमें क्या होता है, जो पूरा स्लैब का लोड होता है वो वॉल्स और कॉलम्स, एक्सटर्नल वॉल्स जो होती है वो लोड बेयरिंग वॉल्स होती है, तो वो वॉल्स भी लोड बेयर करती है, और बीच वाला जो लोड आता है वो कॉलम्स पे जाता है, तो ये दोनों लोड्स बेयर करते हैं और उससे जाता है फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन फिर नीचे सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। Composite structure are preferred for buildings having large spans such as workshop, hall, factories, shed, godowns, etc. ऐसे स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं, जहाँ पे हमें लार्ज स्पान बनाना पड़ता है, जैसे वर्कशॉप हॉल्स में। ओके, मैरिज हॉल देखे तो भी वो काफ़ी बड़ा हॉल होता है, तो उसमें हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। Now let's study the comparison of load-bearing structure with the frame structure. In load-bearing structure, structure comprises of slabs, beams and load-bearing walls, whereas in frame structure, the structure comprises of slab, beams and columns. Load-bearing structure में load-bearing wall होती है और frame structure में columns होते हैं। In load-bearing structure, loads from roof or trusses and floors are transmitted through walls to the subsoil below the ground through their foundations. Whereas in frame structure, the loads from the slab are transferred to the beams rest over columns, and the whole structure is transferred to the subsoil below the ground through the columns and their footings. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो भी लोड आता है वो वॉल्स पे लगता है और वॉल्स फाउंडेशन को देती है, और फ्रेम स्ट्रक्चर में जो पूरा ऊपर का लोड होता है वो कॉलम्स पे लगता है और कॉलम्स फाउंडेशन को देके फिर आसपास की सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर वॉल्स बेयर द लोड, whereas in frame structure walls may or may not be the bear the load. फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल्स सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज होती है, वो कोई लोड बेयर नहीं करती है, वेरस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल्स पे ही सब लोड लगता है, सो दे बेयर द लोड। फॉर अप टू 3 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। अगर 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी रहती है और रेसिडेंशियल होती है तो फिर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, वेरस all the multi-storied buildings and high-rise buildings are constructed as framed structure. 3 फ्लोर से ज़्यादा स्ट्रक्चर फ्लोर्स लेने होते हैं तो हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। Requires good bearing strata like rock, sandy soil, gravelly soil, etc. at shallow depth. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, शैलो डेप्थ पे, थोड़ी सी डेप्थ पे अच्छी सॉइल चाहिए जो ज़्यादा लोड बेयर कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्स गुड स्ट्रेटा लाइक हार्ड मुरम और रॉक्स बट एट अ ग्रेटर डेप्थ। इसमें ज़्यादा डेप्थ पे भी मिलेगा तो भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर thickness of wall reduces from ground to upper floors, whereas in frame structure the thickness of wall remains same from ground floor to the top floor. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, वॉल्स थिन होती जाती है, ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा थिक रहेगी, फिर ऊपर थोड़ी कम और फाइनल फ्लोर पे एकदम पतली पतली वॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स रहेगी वो उसके ऊपर के फ्लोर जैसे फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का लोड बेयर करेगी, वैसे थर्ड फ्लोर की अगर वॉल रहेगी वो पतली रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई अलग से फ्लोर है नहीं, तो वो उसको कितना लोड लेना है, बस उसके स्लैब का। So the thickness of wall reduces from ground to upper floors, whereas frame structure में ये thickness throughout same रहती है क्योंकि ये तो सिर्फ partition walls होती है। For load bearing structure construction time is more and the cost is less. इसको ज़्यादा टाइम लगता है और इसका cost is less. ये कम पैसों में बनता है क्योंकि इसमें bricks यूज होती है। Whereas in framed structure कंस्ट्रक्शन टाइम इज लेस एंड कॉस्ट इज हाई। ये जल्दी बन जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर बट इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये आरसीसी से बनता है, इसके लिए हमें स्टील चाहिए, कंक्रीट चाहिए, तो ये सब चीज़ों का कॉस्ट होता है वो ज़्यादा रहता है।
लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हैज लेस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज लेस, ये थोड़े टाइम के लिए ही यूज हो सकता है। whereas if we construct building using frame structure, life of the structure is more, ये ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। So today we studied building and its types. I hope you all have understood. आप सबको समझ आया होगा ऐसा लग रहा है। अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और जो टॉपिक्स है बाकी वो अपकमिंग वीडियोस में कवर करूँगी। थैंक यू।